हेलो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. बेसिकली इट वाज इन द न्यूज ऑल्सो कि देयर वाज ए केस. बेसिकली दैट केस वाज अगेंस्ट मद्रास हाई कोर्ट ऑर्डर एंड दिस केस वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट में एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट जो केस आया था वो ये था कि कन्वर्जन ओनली फॉर रिजर्वेशन विदाउट एक्चुअल बिलीफ ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट सुप्रीम कोर्ट ने बोला. ठीक है, तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं. ये आपके जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है आपका. करेक्ट. जीएस पेपर 2 में बेसिकली इंडियन पॉलिटी में जो आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ते हो अंडर आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28, सो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है. ठीक है, और इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें कवर करेंगे. बेसिकली एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में, कन्वर्जन एक राइट टू कन्वर्जन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या नहीं, या फंडामेंटल राइट है या नहीं, उन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले समझते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में मैटर क्या था. मैटर इसमें यह था कि एक जो अपीलेंट थी, इसमें अपीलेंट करेक्ट, उसको एससी सर्टिफिकेट मिल गया था, दैट इज शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट. एंड उसके जो फादर थे, फादर वाज बेसिकली हिंदू एंड मदर वाज क्रिश्चियन, बट her parents marriage actually was conducted based on Christianity principles and beliefs and rituals, not according to the Hinduism beliefs and rituals. So because of that क्या हुआ कि she was also a Christian, and since he was a Christian, so she cannot basically take a SC reservation benefit, that is scheduled caste reservation benefit, because in Indian constitution or Indian law, the SC status can be given or availed only by Hindu or Buddhist or Sikh, none other. That means a Muslim cannot claim a Dalit status, same a Christian cannot claim a Dalit status. Reason simple है कि if someone is actually leaving Hinduism and joining Christianity, the reason was because there was a social exploitations in the Hindu religion. Because of that, person left this Hindu religion and joined Christian religion. Correct? If this was basically the background, since he has already actually or she has already left Hinduism and joined, basically converted to Christian, so now she cannot or he cannot claim the SC status, that is scheduled caste status. Reason is this: in the Christianity there is no caste system. Since there is no caste system, so no social stigma is attached in the Christianity, and this is the reason is a Christian individual cannot claim a Dalit status, and same for the Muslim also. So we are going to discuss this in detail. So I told you here कि conversion only for the benefit of reservation is basically a fraud on the constitution. This was the case, and here definitely a bench of justice Pankaj Mittal and R Mahadevan clearly said that कि appellant basically profess a Christianity and actively practices the faith by attending the church regularly. That means the appellant actually attending the church regularly, she is following all the rituals of the Christianity, so she cannot claim that she is still a Hindu by practice or by religion. सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग देखते हैं. सुप्रीम कोर्ट रूलिंग क्या है कि कन्वर्जन फॉर रिजर्वेशन बेनिफिट इनवैलिड विदाउट जेन्युइन बिलीफ. See, reservation has been given for some purpose. Purpose was this: upliftment of the individuals, like those who belongs to the disadvantaged sections like SC community or ST community or OBC community or EWS, because they were actually having some issues regarding their background, because social exploitation has been done with them, or because of like EWS category, they are not financially stable, they are very economically weaker section, because of that reservation need to be given to them. But here actually you are actually a Christian, so you are not exploited socially, your status is good, so you cannot claim SC status. That is the reason, because reservation का जो main purpose था, that is defeat the social purpose of reservation policies. That is the main important task is. So Supreme Court basically denied SC certificate, that is scheduled caste certificate, to a born Christian claiming to be Hindu for a job, because she wanted a job. Actually she wanted a government job, a clerk job basically, and the clerk job mein she actually was availing a reservation based on SC certificate, but she was practicing Christianity only, and that is the reason here Supreme Court upheld the Madras High Court verdicts.
Madras High Court also actually claimed the same कि the appellant है, appellant is actually a Christian, okay, individual. She cannot claim a SC status or SC certificate. Now, so that is the reason you can now read over here. यहाँ पे क्या लिखा है? What is mentioned here is therefore the conferment of the scheduled caste communal status to the appellant who is a Christian by religion but claims to still embracing Hinduism only for the purpose of availing reservation in employment would go against the very object of reservation and would amount to fraud on the constitution. These lines have been actually given by Supreme Court. It is basically a complete fraud on the constitution. She cannot take the benefit of SC certificate or SC reservation just to get a job, just to get a government job. Clear? तो आपको एक बात बिल्कुल क्लियर इसमें हो गया होगा कि जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल बाय बर्थ बेसिकली रियलिटी में ये देखा गया था कि वो इंडिविजुअल जब 3 मंथ्स और लेस देन 3 मंथ्स ओल्ड थी तो ऑलरेडी वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गई थी एंड दैट इज द रीजन इज कि जब क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गई थी उसके जो माता पिता थे, पेरेंट्स थे, उनकी जो शादी थी वो भी अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन प्रिंसिपल ही हुई थी. वो हम आगे अभी देखेंगे. इसमें क्या है, कोर्ट ने क्या बोला फिर से, द फील्ड वेरिफिकेशन, जो फील्ड वेरिफिकेशन हुआ था clearly revealed that registration of the marriage of the parents of the appellant under the Indian Christian Marriage Act, that means उसके जो पेरेंट्स थे उनकी जो शादी थी, दैट शादी जो उसकी थी वो रजिस्टर हुई थी अंडर इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872. इसका मतलब जो मैरिज हुआ था शादी वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नहीं हुआ था, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत नहीं हुआ था, वो हुआ था इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट. करेक्ट और नॉट? एंड दैट baptism of the appellant and her brother and also the fact that they had been regularly attending the church, there is nothing on the record to show that she or her family has reconverted to Hinduism, and on the contrary there is a factual finding that appellant is still professing क्रिश्चियनिटी. क्लियरली लिखा हुआ है. और ये जो विलेज एडमिनिस्ट्रेटर जो ऑफिसर था और जो गांव में जो ग्राम विकास अधिकारी वगैरह होते हैं उन्होंने क्लियरली ये फैक्ट प्रूव करके दिया है कि सी एंड हर फैमिली एक्चुअली स्टिल प्रोफेसिंग, दे स्टिल एक्चुअली प्रैक्टिसिंग द क्रिश्चियन रिचुअल्स, the Christian religion principles. Correct? So because of that reason is she cannot avail the SC status or Dalit status, and so she cannot avail the reservation based on SC. Correct? अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि क्या अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आपके मन में ये आता है कि जो दलित दो फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन है, क्या क्रिश्चियन को कभी एससी स्टेटस नहीं मिल सकता है? क्या उनको जो दलित स्टेटस नहीं मिलेगा या शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन नहीं मिलेगा? मुस्लिम को ओके दिस एससी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा? और अगर नहीं मिलेगा तो ऐसा कहां लिखा हुआ है? तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को बोला हुआ था और एक ऑर्डर भी पास हुआ था. ऑर्डर में क्या लिखा था? कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950. क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर ऑफ 1950 does not suffer from any unconstitutionality and it is legal and valid, says affidavit. That means इसमें क्या बोला गया है? सिंपल बोला गया कि 1950 जो कॉन्स्टिट्यूशन एससी ऑर्डर है, that SC status, that means scheduled caste status reserved only for Hindus, extended to Sikh and Buddhism only. Correct or not? That means जो SC status है it is reserved only for Hindu, Sikh and Buddha, but not for the Muslims, not for the Christian. यही चीज इसमें देखो है, no quota benefits for Dalit Muslims and Christianity as there is not any backwardness in the two religion. जो ये दोनों रिलीजन है मुस्लिम्स दैट इज इस्लाम एंड क्रिश्चियन, उसमें ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है बैकवर्डनेस का. करेक्ट और नोट? अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते हो हिंदू से या इस्लाम में कन्वर्ट होते हो तो आपका मेन पर्पस क्या था? टू अवॉइड दिस बैकवर्डनेस, सोशल बैकवर्डनेस बेसिकली फ्रॉम द हिंदुइज्म. And since you are avoiding this and you are joining Christianity and again you are claiming the SC status only, scheduled caste status only, तो इसका मतलब ये फ्रॉड ही आप कर रहे हो ना. तो यही चीज इसमें लिखा हुआ है, रिजर्वेशन एलिजिबिलिटी अप्लाई ओनली टू दीज कम्युनिटी दैट इज हिंदू, सिख एंड बुद्ध अंडर द करंट लॉ. इवन एक रंगनाथ कमीशन भी था इन 2007. रंगनाथ कमीशन ने रिकमेंड भी किया था. क्या रिकमेंड किया था? रिकमेंडेड एक्सटेंडेड एससी कोटा, द दलित कोटा टू दलित क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स ऑल्सो, बट गवर्नमेंट ने स्टिल इसको माना नहीं है. करेक्ट है कि नहीं? रंगनाथ
मिश्रा कमीशन 2007 ने रिकमेंड किया था कि जो एससी स्टेटस है उसका जो बेनिफिट है, शेड्यूल कास्ट बेनिफिट, दलित कोटा बेनिफिट, वो क्रिश्चियनिटी को भी मिलना चाहिए और मुस्लिम को भी मिलना चाहिए, बट स्टिल गवर्नमेंट हैज नॉट एक्सेप्टेड इट. सो दिस इज द करंट फॉर एग्जांपल लॉ, करंट लॉ यही है कि जो एससी स्टेटस है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट को अवेलेबल है, ना कि क्रिश्चियनिटी को, ना कि जैन को इवन, और ना आपका मुस्लिम को. क्लियर? नेक्स्ट, अब आपको हम बताइए कि क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन करेक्ट है ना? ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बिकॉज हमको पता है कि अपने जो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 25 से लेकर टिल आर्टिकल नंबर 28 इट टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ रिलीजन. क्लियर है कि जो आपका आर्टिकल नंबर 25 है से लेकर टिल आर्टिकल नंबर 28 इट इज बेसिकली अ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड दिस इज अवेलेबल टू एवरीवन. दैट मींस इट इज अवेलेबल टू पर्सन. अगर हम पर्सन बोले दैट मींस दिस फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू सिटीजन एंड नॉन सिटीजन बोथ. करेक्ट है? क्योंकि हमको पता है ओनली फ्यू फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है, जो कि आपके फंडामेंटल आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल 16, 19, 29 and 30. These 5 fundamental rights only available to the Indian citizens, but rest of the available to others also. So based on this two, article number 25 to 28, that is freedom of religion, they are available to citizens also and foreigners also. तो इंडिया में फ्रीडम ऑफ रिलीजन अवेलेबल है? आंसर इज अवेलेबल है. कहां पे अवेलेबल है? सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज गारंटीड बाय आर्टिकल नंबर 25 एंड आर्टिकल नंबर 26. आर्टिकल नंबर 25 बेसिकली क्या होता है कि इंडिविजुअल को फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटी करता है एंड आर्टिकल नंबर 26 एक कम्युनिटी को फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटी करता है. अगर आपको ऐसे आर्टिकल के बारे में और जानना है तो लीगेसी आईएएस के जो यूट्यूब चैनल है उसमें एक सीरीज चल रही है, शॉर्ट्स में आप देखना जाके, जिसमें सीरीज चल रही आर्टिकल की सीरीज, जिसमें वन आर्टिकल्स हम लोग डेली कवर करते हैं. वो आप यूट्यूब में शॉर्ट्स में भी देख सकते हो, या आप लीगेसी आईएएस का चैनल इंस्टाग्राम में सर्च कर सकते हो. वहां पे भी आपको डेली एक रील्स आपको मिल जाएगी, जहां पे आपको सारे आर्टिकल एक एक करके 60 सेकंड में कवर करेंगे हम लोग, और कर रहे हैं बेसिकली. तो आपको ये सारी चीजें बहुत ईजी उसमें हो जाएंगी. सो ध्यान रखना कि द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंडिया इज गारंटीड बाय आर्टिकल नंबर 25, 26. अब हम समझते हैं आर्टिकल नंबर 25 क्या है. आर्टिकल नंबर 25 बेसिकली ग्रांट्स, क्या ग्रांट्स करता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस. क्या है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का सिंपल मतलब होता है कि आपके इंटरनल, कि आपका जो रिलेशन है विद द गॉड, वो इंटरनली आप सिर्फ जानते हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी आत्मा में क्या चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल आपका रिलेशन विथ योर गॉड क्या है? एज ए फ्रेंड है, एज ए फादर फिगर है, या फॉर एग्जाम्पल एज ए गुरु है, या एज ए फॉर एग्जाम्पल प्रेमी और प्रेमिका है, जैसे मीराबाई का रिलेशन. करेक्ट और नॉट? तो वो सिर्फ आपका डेफिनेटली 100% ये आपका फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है. इसमें गवर्नमेंट और स्टेट कुछ भी रेगुलेट नहीं कर सकता है. ये एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है आपके पास. मैं आपको एक बता दूं, ये एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है. यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि सी आपके अंदर क्या चल रहा है आपको ही पता है. इसमें सरकार इसमें कोई रेगुलेशन नहीं कर सकती कि आप ऐसा नहीं सोच सकते हो, वैसा नहीं सोच सकते हो. सोचने में क्या होता है, सोचने की तो आपको 100% आजादी है. तो ये आपको 100% एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है. लेकिन उसके बाद कुछ और फंडामेंटल राइट्स आपको मिली, राइट टू प्रैक्टिस. राइट टू प्रैक्टिस बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई भी रिचुअल्स आपके हैं, कुछ भी आप रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो, उसको प्रैक्टिस करना है. प्रोफेस मींस क्या होता है? दूसरों को बताना. यू आर टेलिंग टू अदर्स बाय सिंबल्स, बाय वर्ड्स, बाय एक्शंस, दूसरों को अपने रिलीजन के बारे में बताना. दैट इज कॉल्ड एज प्रोफेस. उसके बाद प्रोपोगेट. प्रोपोगेट का मतलब होता है आप अपने इस रिलीजन को फैलाते हो. करेक्ट और नॉट? आप स्प्रेड करते हो, दूसरों को बताते हो कि हमारा रिलीजन कितना बढ़िया है. सी आपको दूसरों का रिलीजन टारगेट नहीं करना है, बस उसको डिग्रेड नहीं करना है, लेकिन अपने रिलीजन के बारे में बता सकते हो कि मेरे रिलीजन में ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसा करके. इसको बोलते हैं प्रोपोगेट. करेक्ट और नॉट? सो राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट. लेकिन ये जो फंडामेंटल राइट है, जे राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट, दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट दैट कैन बी बेसिकली रेगुलेटेड बाय द स्टेट बेस्ड ऑन 3 ग्राउंड्स. कौन से ग्राउंड्स हैं? लाइक एग्जांपल, बेस्ड ऑन public order, based on health, and third is based on morality. In these 3 ground पे government definitely, government means state can regulate your this fundamental right. लेकिन यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है वो प्रोपोगेट का है. क्या है? प्रोपोगेट करते करते आप इतने इमोशनल हो जाते हो, इतने इमोशनल हो जाते हो कि आप लोगों को
कन्वर्ट करने की कोशिश करने लगते हो। क्या करने लगते हो? यू स्टार्ट फोर्सिंग अदर्स टू कन्वर्ट टू योर ओन रिलीजन, करेक्ट और नॉट? जैसे आप क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हो, करेक्ट, आपने क्या होगा अपनी क्रिश्चियनिटी के बारे में लोगों को बताया, लेकिन आप इतना उसमें मशगूल हो गए, इतने इमोशनल हो गए कि आप उसमें बाई फोर्स, बाई एल्योरमेंट, ओके, बाई फ्रॉड आप दूसरों को फॉर एग्जांपल फोर्स करने लगे कि हमारे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ। तो ध्यान रखना, राइट टू प्रोपोगेट डज नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट। दैट मीन्स राइट टू कन्वर्ट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। एकदम से आप ध्यान रखना कि जो राइट टू कन्वर्ट है, करेक्ट है, ध्यान रखना ये चीज, राइट टू कन्वर्जन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। जो आर्टिकल नंबर 25 है, दिस आर्टिकल नंबर 25 डज नॉट गारंटी दिस राइट टू कन्वर्जन इज ए फंडामेंटल राइट। इट्स सिंपली राइट टू प्रोपोगेट आपको एज ए फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। अब आप बोलोगे राइट टू कन्वर्जन क्यों नहीं है? सी, अगर कोई अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो रहा है किसी रिलीजन में, लाइक हिंदू से क्रिश्चियन में, या क्रिश्चियन से हिंदू में, या मुस्लिम से हिंदू में, हिंदू से मुस्लिम में, किसी भी रिलीजन में अपनी मर्जी से हो रहा है ना, तो वो अलाउड है, क्योंकि वो कंसाइंस फॉलो कर रहा है, करेक्ट है, उसके मन में क्या चल रहा है वो कंसाइंस फॉलो कर रहा है। लेकिन आप किसी को बाई फोर्स कन्वर्ट करने की कोशिश करो, कैसे? बाई फोर्स, या आपने उसको पैसा दे दिया, करेक्ट है, या आपने उसको एल्यूर किया इस गलत, और फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ सम बेनिफिट, ऐसा अगर कोई इंसान कन्वर्ट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, उसका कंसाइंस ब्रेक हो जा रहा है। जैसे कोई एक गरीब इंसान है, वो गरीब इंसान, जैसे फॉर एग्जांपल वो गरीब इंसान एक हिंदू के पर्सन है, करेक्ट है, अब हिंदू पर्सन है और उसका रिलीजन हिंदू है, वो गरीब है। अब मैंने क्या उसको बोला है कि हम आपको बेसिकली 2 राइस की बोरी देंगे, कितना देंगे? ये 100 केजी राइस देंगे, आप हमारे क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ। अब जस्ट वो बेचारा गरीब है, करेक्ट है, उसके यहाँ खाने के पैसे नहीं है, अब उसके लिए क्या होगा? फूड ही सबसे बड़ा धर्म हो जाता है। तो वो बिकॉज वो राइस का जो 100 केजी राइस का मैंने उसको प्रॉमिस किया था, उसकी वजह से वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया। अब उससे क्या हुआ कि जो उसका खुद का कंसाइंस था वो तो है ही नहीं, उसका जेन्युइन बिलीव क्रिश्चियनिटी में तो है ही नहीं, उसका जेन्युइन बिलीव तो सिर्फ और सिर्फ 100 केजी राइस में है ना, तो उसका ये फंडामेंटल राइट ब्रेक हो गया कि नहीं हो गया? एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन इज कि वी आर वायलेटिंग that person's fundamental right, because we are forcing them, we are alluring them, we are inducing them by money or by some other measures, correct or not? We are violating their fundamental right, freedom of conscience. Because of that reason is, in our Indian constitution, right to conversion is not a fundamental right. इंसान जो होता है वो कन्वर्ट हो सकता है दूसरे रिलीजन में अपनी खुद की मर्जी से, ना कि किसी फोर्स और फ्रॉड और कोई और ऐसे मेथड से। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, इस क्या होता है, कई सारे स्टेट में ऐसा देखा गया कि एक मास कन्वर्जन चलने लगा। फॉर एग्जांपल ऐसा 1970s में देखा गया, 1980s में भी देखा गया कि मास कन्वर्जन हो रहा था, पूरे गांव के गांव जो है ना एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो रहे थे, बेसिकली फ्रॉम हिंदू टू क्रिश्चियनिटी, करेक्ट। इससे रिलेटेड क्या हुआ कि लॉट ऑफ डेमोग्राफिक प्रॉब्लम्स आने लगा, करेक्ट है ना, तो सरकार ने कुछ कदम उठाए एंड सरकार ने कुछ एंटी कन्वर्जन लॉ पास किए। तो जो एंटी कन्वर्जन जो लॉ थे वो क्या थे, वो बेसिकली ये मैंडेट करते हैं दैट रिलीजियस कन्वर्जन शुड ऑकर ओनली थ्रू पर्सनल कन्विक्शंस, आई टोल्ड यू, थ्रू ऑकर ओनली थ्रू पर्सनल कन्विक्शंस rather than by force or allurement or deceit, correct or not? So it basically prohibit the forced conversion. That means whatever those law are there, that anti conversion law, they specifically prohibit the converting someone through coercions, fraud, undue influence और फाइनेंशियल इंसेंटिव। आई टोल्ड यू कि 100 केजी राइस आपने दे दिया और इसकी वजह से वो पर्सन कन्वर्ट हो गया, ये सब फ्रॉड माना जाएगा। दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज ए पीनल ऑफेंस, करेक्ट, आपको जेल भी हो सकती है इसके लिए। करंट स्टेटस ऑफ एंटी कन्वर्जन लॉ अगर हम इंडिया में देखें तो एक चीज आप क्लियर है कि पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया अभी तक। एकदम ध्यान रख लेना, लॉ मिनिस्ट्री ने बोला भी है कि जो पार्लियामेंट के पास ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि वो एंटी कन्वर्जन के लिए कोई लॉ बना सके, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बना सकती। इसीलिए क्या है कि नो नेशनल लॉ, इंडिया में कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो इस पार्लियामेंट ने बनाया हो रिगार्डिंग एंटी कन्वर्जन लॉ, बट स्टेट ने बनाया है। और जो फर्स्ट स्टेट था जिसने ये लॉ बनाया था वो था उड़ीसा, उड़ीसा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1967। और इसके बाद मध्य प्रदेश ने भी बनाया था, करेक्ट, मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। बेसिकली इसमें क्या था, ये बेसिकली क्या था कि अगर कोई इंसान अगर अपने एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो रहा है ना,
तो कन्वर्जन से पहले उसको 30 डेज दैट इज 1 मंथ का नोटिस देना होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नियर बाई, और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही आपको अलाउ करेगा कि आप कन्वर्ट होगे या नहीं होगे। ये इस पर्टिकुलर एक्ट में था। ऐसे ही मध्य प्रदेश ने भी ऐसा एक्ट लॉ पास किया, तो उसमें भी यही प्रोविजन था कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो रहे हो ना, तो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिस देना पड़ेगा, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कंसेंट मिलने के बाद ही आप दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो सकते हो। उसके बाद कई और स्टेट्स आए, जैसे छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इन स्टेट्स ने भी ऐसा एंटी कन्वर्जन लॉ पास किया। जैसे उत्तर प्रदेश ने तो इसके लिए भी पास किया था कि जस्ट बिकॉज ऑफ मैरिज एक्चुअली समवन इज कन्वर्टिंग इट इज ऑल्सो ए फ्रॉड। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई टू एक्चुअली इंडिविजुअल्स हैं, लाइक मेल एंड फीमेल दो हैं, ओके, इनका शादी होने का है, ठीक है। अब इसमें आपने देखा गया कि अक्सर ये होता है कि जो फीमेल है वो हिंदू है फॉर एग्जांपल, एंड मेल जो है ना वो मुस्लिम है, करेक्ट, मेल एक मुस्लिम, हम सब आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, करेक्ट है। एग्जाम्पल ये देखा गया, तो इसमें क्या गया कि जब थी अगर दोनों में आपसी प्रेम व्यवहार है, प्यार है, और वो एक दूसरे से शादी करे, इसमें किसी को कोई नहीं रोक सकता है, करेक्ट है। लेकिन इसमें यह देखा गया कि जब ये इसमें शादी करते हैं तो क्या होगा कि इस लड़की को हिंदू से मुसलमान में कन्वर्ट करने का पूरा होता है, कि आपको मुस्लिम में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी आप मैरिज शादी कर सकते हो। तो जो लड़के की तरफ से ऐसा एक फॉर एग्जाम्पल प्रस्ताव जाता है लड़की के घर वालों की कि जब तक वो लड़की मुसलमान में और मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं होगी हम उसको अपने में नहीं लिएंगे। और आप उल्टा भी इसमें दे सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो कि अगर लड़के को ऐसा ऐसा प्रस्ताव मिल गया लड़की की साइड से कि आप जब तक हिंदू में कन्वर्ट नहीं होगे तब तक आप शादी नहीं हम अलाउ करेंगे, तो जस्ट बिकॉज ऑफ मैरिज you are forcing those couples to convert into the religions। so उत्तर प्रदेश का जो एक्ट है उसमें ये भी अलाउ नहीं है। उसके लिए भी क्या है कि आपको एटलीस्ट फॉर एग्जांपल 60 डेज का नोटिस देना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और तभी आप वो शादी इंटरफेथ जो इंटर रिलीजियस मैरिज होता है वो अलाउ होगा। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके पास पावर भी होती है कि वो जो शादी की है ना वो उसको शादी को खारिज भी कर सकता है। तो ये आपने देख लिया एंटी कन्वर्जन लॉ हमारे कंट्री में है। तो एंटी कन्वर्जन लॉ हमारे कंट्री में सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, ये उड़ीसा जो फर्स्ट स्टेट था वहां पे बना था, फिर मध्य प्रदेश में भी बना था, उसके बाद कई और स्टेट में बन के आया है। अब हम नेक्स्ट चीज आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे कि कुछ ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फॉर एग्जांपल जजमेंट है जहां पे एंटी कन्वर्जन और राइट टू कन्वर्जन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट केस था वो था स्टेनिलॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये केस कौन सा था, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, कि मैंने बताया था कि उड़ीसा एक्चुअली में फर्स्ट स्टेट था जिसने एंटी कन्वर्जन लॉ लाया था, उसके बाद मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट था जिसने एंटी कन्वर्जन लॉ लाया था। तो क्या हुआ, इन दोनों लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करने के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि जो उड़ीसा और मध्य प्रदेश है इन्होंने जो एंटी कन्वर्जन लॉ पास किया है ये बेसिकली जो लॉ है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कि स्टेट ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है, और जो ये लॉ थे एंटी कन्वर्जन लॉ ये उस फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को इनको साफ साफ बोल दिया था स्टेनिलॉस को कि भैया आप गलत हो। कैसे गलत हो? कि यस फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज अ फंडामेंटल राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप लक्ष्मीकांत पढ़ लो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, मिल जाएगा। लेकिन राइट टू कन्वर्जन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, ये इसमें बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपील्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एंटी कन्वर्जन लॉ एंड ये बोला राइट टू प्रोपोगेट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कन्वर्ट अदर्स एंड फोर्स्ड कन्वर्जन कैन डिस्टर्ब द पब्लिक ऑर्डर। तो हमने ऑलरेडी ये चीज पढ़ ली है। तो पहला केस डन हो गया। सेकंड केस था सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें क्या था कि ये देखा गया था कुछ लोग जस्ट बिकॉज दे वांट टू मैरी मोर देन वन इंडिविजुअल, करेक्ट। अभी क्या था कि जो बंदा था, ठीक है ना, वो हिंदू है, तो हिंदू में क्या है कि आप एक ही शादी अलाउड है, दूसरी शादी अलाउड नहीं है, उसके लिए आपको तलाक देना होगा, डिवोर्स होने के बाद ही आप दूसरी शादी कर सकते हो। लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें क्या है, एक जो इंसान है मेल है वो 4 शादियां कर सकता है, करेक्ट है कि नहीं। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ हिंदूज ने क्या किया, इसका बेनिफिट लिया। उन्होंने क्या किया कि दे वांटेड टू मैरी 2 women और 3 women और 4 women। उन्होंने क्या किया, दे कन्वर्टेड देमसेल्व्स टू द मुस्लिम रिलीजन जस्ट टू गेट मैरी मोर देन 1 woman टू गेट द बेनिफिट। सो जो आप जो कन्वर्जन कर रहे हो ना ये अल्टीरियर मोटिव की वजह से है, इसमें आपको कोई ऐसा नहीं है कि आप जैसे आप धर्मेंद्र का केस ले लो, तो धर्मेंद्र जो बॉलीवुड एक्टर थे तो उन्होंने भी यही किया था, करेक्ट है कि नहीं। तो इसमें आपने करने से क्या हो रहा है, आपका अल्टीरियर मोटिव है, आपका जेन्युइन बिलीफ तो उस मुस्लिम रिलीजन में है ही नहीं ना। तो सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही चीज बोला था। क्या बोला था कि राइट टू मैरी ए पर्सन ऑफ वन चॉइस इज करेक्ट,
right to marry a person's one choice regardless of religion or social status, that is your own. But कि कन्वर्जन फॉर अल्टीरियर मोटिव दैट इज नॉट जेन्युइन. अल्टीरियर मोटिव ने बता दिया क्या अल्टीरियर मोटिव था. जैसे फॉर एग्जांपल एक कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है अरमान मलिक, आई थिंक, ओके, आई डोंट नो द नेम एक्चुअली, अरमान मलिक नहीं है, आई थिंक अरमान, बट आई नो द नेम. सो उसने भी यही किया था, ही कन्वर्टेड टू द मुस्लिम रिलीजन टू गेट मोर देन वन वुमेन्स ओके मैरिज. सो दैट इज अल्टीरियर मोटिव. दैट इज सरला मुस्लिम यूनियन ऑफ इंडिया में बोला है कि ऐसा कन्वर्जन अलाउड नहीं है. वैसे एक केस और आया था, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. यहाँ पे कोर्ट ने कहा राइट टू मैरी ए पार्टनर ऑफ चॉइस रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन और कास्ट and rule that any interference with this right infringe on individual's freedom. ये बोल दिया था इसमें कि कोई भी इंसान किसी से भी शादी कर सकता है, चाहे वो किसी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो. अगर स्टेट इसको रोकने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली स्टेट क्या कर रहा है, उसके जो इंडिविजुअल जो फ्रीडम है उससे इंटरफियर कर रहा है. लेकिन मैंने बोला तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक लॉ भी पास किया था कि आप सिर्फ और सिर्फ मैरिज के चक्कर में, सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ मैरिज यू आर फोर्सिंग अदर्स टू कन्वर्ट टू योर ओन रिलीजन. It is a fraud basically. It is not allowed. राइट टू प्राइवेसी में भी यही था कि जो KS पुट्टास्वामी केस था 2017, कोर्ट ने बोला था कि ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल्स टू मेक डिसीजंस इन वाइटल मैटर्स कंसर्निंग देयर लाइव्स, दैट मींस राइट टू मैरी. अगेन मैं आपको बताऊं, राइट टू मैरी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट. आप फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं, राइट टू मैरी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट. करेक्ट है. एक और बात आपको बता, हदिया वर्सेस अशोकन केम, जिसको हम फेमसली हदिया केस बोलते हैं, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि राइट ऑफ एडल्ट इंडिविजुअल टू चूज देयर रिलीजन एंड मैरी अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल चॉइस, ये उनका एक फंडामेंटल राइट है. दैट मींस राइट टू ऑफ एडल्ट इंडिविजुअल्स टू चूज देयर रिलीजन एंड मैरी अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल चॉइस. आपके पास हाँ ये एक फंडामेंटल राइट, अपनी खुद की चॉइस से किसी से भी कर सकते हो, ये आपका एक फंडामेंटल राइट है. ये हदिया केस था. बट मैंने वही चीज बोला है, अल्टीरियर मोटिव नहीं होना चाहिए. करेक्ट है कि किसी को फॉर एग्जाम्पल एक केस चल रहा था जैसे फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स लोग लव जिहाद के बारे में बोल देते हैं, तो दैट इज फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी को सिर्फ और सिर्फ आप शादी कर रहे हो इसलिए आप उसको फोर्स कर रहे हो कि हम आपसे तभी शादी करेंगे जब आप मेरे धर्म में आ जाओ, मेरा धर्म अपना लो, तभी हम आपसे शादी करेंगे. तो ये एक अल्टीरियर मोटिव है. करेक्ट है. जैसे आप शाहरुख खान या गौरी खान का नाम ले लो. करेक्ट है. अब गौरी इफ सी स्टिल प्रैक्टिसिंग लाइक हिंदू, और जो शाहरुख खान बॉलीवुड एक्टर सी ओके ही प्रैक्टिस ओके मुस्लिम. अब ये शाहरुख खान इज नॉट फोर्सिंग गौरी टू कन्वर्ट इनटू द मुस्लिम रिलीजन. इट इज फाइन. करेक्ट. और अगर गौरी अगर ये बोले कि नहीं हमको मुस्लिम रिलीजन इस्लाम फॉलो ही करना है, इस्लाम में ही कन्वर्ट होना है अपनी खुद की मर्जी से, वो भी फाइन है. लेकिन जस्ट बिकॉज इफ यू वांट टू मैरी, करेक्ट, और जस्ट बिकॉज तो यू वांट टू मैरी जो फैमिली ऑफ वन ओके पर्सन्स इंडिविजुअल्स, वो आपको फोर्स कर रहे हैं कि नहीं आप मैं तभी शादी करेंगे जब तक आप मेरे रिलीजन में कन्वर्ट नहीं होगे. तो ये जो आपका जो कंसाइंस है उसको ब्रेक कर रहे हैं. जो आपका फ्रीडम है राइट टू कंसाइंस का, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है, वो आपका वायलेट हो रहा है. तो इसलिए यहाँ पे स्टेट जो है ना, गवर्नमेंट है, सम रेगुलेशंस लगा सकती है. तो आज मैंने ये पूरा वीडियो डिस्कशन कर लिया है. तो आई होप यू लाइक इट this particular video. So please like this video and definitely subscribe our channel. and जो भी आपके friends आपके साथ preparation कर रहे हैं उनसे भी ये share करो as much as possible. and thank you and all the best.